السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں رمیز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ وزیر اعظم عمران خان آج شام 7 بجے سندھ کے دورے پر کراچی پہنچیں گے۔ وزیر اعظم گورنر ہاؤس میں قیام کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات کا بھی امکان ہے، جس میں کورونا سے متعلق صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ کراچی میں کورونا سے متاثرہ علاقے سیل کرنے پر بھی مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں تاجروں اور سیاسی رہنماؤں سے بھی ملیں گے۔ گورنر ہاؤس میں پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کراچی کے بعد لاڑکانہ اور جیکب آباد جائیں گے۔ لاڑکانہ میں احساس سینٹر کا دورہ کریں گے۔ سندھ حکومت نے این آئی سی وی ڈی، این آئی سی ایچ اور جناح اسپتال واپس لینے سے متعلق وفاق کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ سما سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے تینوں ہسپتالوں پر بڑا پیسہ لگایا، مگر وفاق نے آج تک ایک پائی نہیں دی۔ ایک خط لکھا ہے وفاقی حکومت نے جو کہ ہسپتالوں کو بھیجا گیا ہے، یہ سراسر سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ یہ تینوں ہسپتال کرونا وائرس کے سلسلے میں بڑا متحرک انداز سے کام کر رہے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ سندھ گورنمنٹ نے کی ہے۔ وفاقی حکومت ایسا لگتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ کرونا وائرس سے لڑنا نہیں ہے، وہ سندھ حکومت سے لڑنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے لڑنا ہے۔ سپریم کورٹ نے فرمایا ہے کہ کیا کیا لوازمات ہیں ہسپتال کی منتقلی کے لیے اور کس طریقے سے ان تمام لوازمات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک وہ کوئی پروسیس وفاقی حکومت کی جانب سے سٹارٹ نہیں ہوا، کوئی اس کے اوپر خط و کتابت نہیں ہوا اور ایک دم سے انہوں نے ہسپتال کو لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم اس کو تحریری طور پر وفاقی حکومت کو اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کریں گے۔ یہ جو منسٹری آف ہیلتھ کی جانب سے لیٹر آیا ہے، یہ وفاقی حکومت کی وفاقی کابینہ کے 2 جولائی 2019 کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے، چونکہ اس فیصلے کے اندر ان پرنسپل یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ہسپتال جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے پاس رہیں گے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو ادارے بناتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ جو انویسٹمنٹ صوبائی حکومت نے ان ہسپتالوں کے حوالے سے کی ہے، وہ انویسٹمنٹ، وہ اخراجات کو جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ری ایمبرس کرے گی اور صوبائی حکومت کو واپس کرے گی۔ ابھی تک ایک پائی وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ حکومت کو اس سلسلے میں نہیں ملی۔ کورونا کو شکست دینے کے بعد گورنر سندھ ٹائیگر فورس کو لے کر ایسے نکلے جیسے آئرن مین بن گئے ہوں۔ زینب مارکیٹ کو کورونا فری زون سمجھ کر رش لگا کر گھومتے رہے۔ ٹائیگر فورس کا کیا کام ہے یہ بھی بھول گئے۔ شاہنواز علی قادری کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ ہے سندھ کے گورنر عمران اسماعیل۔ انہوں نے حالیہ دنوں میں ہی کورونا سے 2 ہاتھ کیے، مگر اس فتح کے بعد لگتا ہے یہ اپنی ٹیم اور خود کو آئرن مین سمجھ بیٹھے ہیں۔ کراچی کی زینب مارکیٹ میں گورنر صاحب اپنی ٹائیگر فورس کو لے کر تو آئے تھے لوگوں کو کورونا سے بچنے کا طریقہ بتانے، مگر اتنا رش دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے نکلے ہوں سب کو کورونا لگانے۔ ایک طرف ان کے ٹائیگرز دائرے بنا کر فاصلہ رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، تو دوسری طرف آپس میں اتنی قربت کہ سارے فاصلے مٹا کر کورونا کو دعوت دے رہے ہیں۔ اسی پر سوال ہوا تو جواب تنقید برائے تنقید سے دیا۔ ٹائیگر فورس کا کام کیا ہوگا کہ سماجی فاصلے کی دھجیاں تو آپ لوگوں نے یہ بھی اڑا دی۔ سماجی فاصلے کی تو آپ نے بھی کوئی پابندی ایسی کی نہیں خاص۔ ماسک آپ نے پہنا نہیں۔ چلیں مجھے بات کرنے دیں۔ یہی نہیں، گورنر صاحب اپنے ٹائیگرز کا کام بھی بھول گئے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ ٹائیگر فورس کا مین کام ہوگا اس کے جو یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اس کے اوپر مانیٹرنگ کرنا۔ اس سے پہلے بھی گورنر سندھ عمران اسماعیل نے اندرون سندھ جا کر 300 سے زائد لوگوں کی تقریب میں شرکت کی تھی، جس کے بعد ان میں کورونا وائرس پایا گیا تھا۔ سندھ اسمبلی کے قواعد و ضوابط میں ترمیم کر دی گئی۔ اب آن لائن اسمبلی سیشن میں ارکان گھر بیٹھ کر نہ صرف شرکت کر سکیں گے بلکہ تقاریر کی بھی اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے معاملے پر اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھونک بھی ہوئی تھی۔ سنجے سادوانی کی رپورٹ دیکھیے۔ 25% مجھے اعتراض نہیں 25% پہ، لیکن کوئی بھی قانون آپ پاس کریں گے ہماری نارمل انڈرسٹینڈنگ سے قانون ابول نہیں ہوگا، چیلنج ہو جائے گا، فارغ ہو جائے گا 2 منٹ میں۔ یہ دھمکیاں، یہ باتیں نہ کریں، بٹ ہمیں اپوزیشن کی بات کا پورا لحاظ ہے۔
कोरोना से बचने के लिए वजीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर में नोक झोंक। असेंबली के ऑनलाइन इजलास के मामले पर बहस शुरू हुई तो ऐवान में सिर्फ 25% अरकान की मौजूदगी में कानून पास कराने पर फिरदौस शमीम नकवी ने एतराज उठाया, लेकिन वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दो टोक बता दिया कि सब हो सकता है। कोई चैलेंज वैलेंज नहीं होगा, कोरम हो या ना हो। मैं आपको ये बताऊंगा एंड आई विल शो यू द रीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश इन चीजों की है। वजीर आला की टोन देखकर अपोजिशन लीडर ठंडे तो हो गए मगर अपना बरहम भी बरकरार रखा। जिसके और रवैया जिसके लिहाज से हम बात कर रहे हैं, ना हम किसी तड़ी में आते हैं ना कड़ी तड़ी देने में यकीन रखते हैं। वजीर आला ने फिर वादे किया कि हम तो सिर्फ कोरोना की वबा से अपने अरकान को बचाना चाहते हैं, आप अपने वजीर आजम की ही बात मान लें। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि एहतियात करें और मजमाना इकट्ठा करें। अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बात मान ले भाई, हमारी तो कोई छोड़े। दोनों तरफ से दिल की भड़ास निकलने के बाद मुकेश कुमार चावला ने ऐवान में 25 अरकान की मौजूदगी और दीगर की ऑनलाइन शिरकत से मुताल्लिक करारदाद पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। अब 17 जून को बजट इजलास में कोरोना के शिकार अरकान सिंध असेंबली में ऑनलाइन इजलास में शिरकत कर सकेंगे। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। कोरोना वायरस पंजाब में अपना शिकंजा सख्त करता जा रहा है। लाहौर में केसेस की तादाद में इजाफा हो गया। हुकूमत पंजाब ने लाहौर के कई इलाके 15 रोज के लिए सील करने का ऐलान कर दिया। शादरा, मजंग, निश्तर टाउन, शादबाग, कैंट और अंदरूनी लाहौर सील होंगे। इकबाल टाउन और गुलबर्ग के इलाके भी कल से बंद किए जाएंगे। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने मीडिया के सामने तफसील पेश कर दी। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई है पिछले 2 दिन के अंदर, जिसमें हमने इंसिडेंट्स लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स हैं उनके लिए एक डिफरेंट तदबीर तैयार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं बहुत हद तक बंद कर दिया गया। कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वर्ल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और ये डिसीजन जो है इसमें खाने पीने की अशिया, आपके फार्मेसीज हैं, उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी। फैक्ट्रीज इस वक्त प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रही हैं, अगर उस इलाके में हैं वो भी खुले रहेंगे। तो बाकायदा लिस्ट जो है वो आवेदन करेंगे कमिश्नर साहब, और ये कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है। इस दौरानिया में जायजा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में करीब काम की इजाजत मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़्यादा केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं ज़रूरत पड़ी तो पाक फौज की मदद भी हासिल करेंगे। हमने ये फैसला किया है कि हम जहाँ जहाँ पे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। हमने इसके लिए पूरे सूबे में आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन से इलाके इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। उस हवाले से हमने उसके लिए मैकेनिज़्म बना लिया है। जहाँ पे SOPs पे अमल नहीं होगा वहाँ पे हमने एक्शन लिया भी है और लेंगे भी, इसमें कोई अब दूसरी राय नहीं। हमने फैसला किया है कि जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी वहाँ पे हम पाक फौज की भी जो हेल्प होगी वो हम लेंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं सूबे में कोरोना के 70% केस गुज़श्ता 1 माह में रिपोर्ट हुए हैं। जुलाई के आखिर तक मुतासरीन की तादाद 20,000 तक हो सकती है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। टोटल जो हमारे केसेस हैं बलूचिस्तान में 8,177, इसका 70% जो केसेस हैं वो इसी 1 महीने में वो सामने आए। खुशी की बात यह है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से एवरेज हमारे जो केसेस का है वो कम होना शुरू हुआ है। कल जो हमने टेस्ट कंडक्ट किए 758, उसमें 149 केसेस पॉजिटिव आए, जो बनते हैं 21%। परसों जो केसेस सामने आए थे वो बनते हैं 22%। माली साल 2020-21 के लिए पंजाब का बजट पेश कर दिया गया। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। कोरोना से मुतासरा शोबों के लिए खुसूसी टैक्स रिलीफ का ऐलान। 13 खिदमात पर टैक्स बिल्कुल खत्म और 10 पर 5% टैक्स रह जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। 2,240 अरब रुपए का बजट पंजाब असेंबली में पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। तरक्याती मंसूबों के लिए 337 अरब रुपए मुख्तिस। हम पहले से जारी मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करें
आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के लिए मजबूरी तौर पर 337 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। ईवान में बजट वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवान बख्त ने पेश किया। अखराजात जारिया के लिए 1700 अरब और जारी मंसूबों के लिए 61 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नए मंसूबों को 54 अरब रुपए मिलेंगे। स्पेशलाइज हेल्थ के लिए 128 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। तालीम के लिए 391 अरब रुपए से जायद रखे गए हैं। हुकूमत पंजाब अपनी प्रो बिजनेस पॉलिसीज को मजीद तकवीत देते हुए आइंदा माली साल में 56 अरब रुपए से जायद के टैक्स रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रही है। ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स रिलीफ पैकेज है। कोरोना से मुतासर शोबों के लिए खसूसी टैक्स रिलीफ दिया गया। 13 खिदमात पर टैक्स बिल्कुल खत्म और 10 पर 5% टैक्स रह जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी 2 किस्तों में की जा सकेगी। 30 सितंबर 2020 तक मुकम्मल टैक्स की अदायगी की सूरत में टैक्स दहिंदगान को 5% की बजाय 10% रिबेट दिया जाएगा। जनूबी पंजाब में 16 महकमों पर मुश्तमिल सिविल सेक्रेटेरिएट के क्याम के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स पर 20% रियायत मिलेगी। FBR की प्रॉपर्टी के हवाले से नई इवैल्यूएशन 1 साल के लिए मौखर कर दी गई है। रजिस्ट्रियाँ पुराने रेट्स पर होंगी। स्टाम्प पेपर पर आयद ड्यूटी 5% से कम करके 1% करने की तजवीज है। साथी रिपोर्टर आरिफ मलिक के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन और ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज किया। खूब शोर शराबा हुआ। बजट की कॉपियां भी फाड़ दी गई। आरिफ मलिक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में हंगामा, ऐवान के अंदर बाहर अपोजिशन का एहतजाज, बजट की कापियां फाड़ दी। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर परवेज इलाही की जेर सदारत 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। वजीर खजाना हाशिम जवां बख्त ने जैसे ही बजट तकरीर शुरू की, अपोजिशन ने प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज शुरू कर दिया। सूबाई वजीर खजाना की तकरीर के दौरान ही अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया और ऐवान से बाहर आकर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज बोले, ये अवाम दुश्मन बजट है, हम इसे नहीं मानते। अभी कई मिनी बजट्स आने हैं। गरीब आदमी, मजदूर, रेडी बांध के दरवाजे पर दस्तक देनी है और उनका खून इन्होंने निचोड़ना है। नाअहली की इंतहा ये है कि ये माइनस में बजट है, नेगेटिव ग्रोथ होगी। हुकूमती अरकान का कहना था कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इन हालात में PTI ने बहुत अच्छा बजट दिया है। मुश्किल तरीन हालात के कोविड की वजह से जो माली मामला थे उनको भी मद्देनजर रखते हुए ये बजट बड़ा ज़बरदस्त बनाया गया और मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट का बजट भी पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा डेवलपमेंट का बजट भी ज़्यादा रखा गया है। वज़ीर ख़जाना ने अपनी बजट तकरीर मुकम्मल की, जिसके बाद स्पीकर ने इजलास 18 जून 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। आरिफ मलिक, समा, लाहौर। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं रवा माली साल 530 अरब रुपए PSDP से इस्तेमाल होंगे। कराची सर्कुलर रेलवे फेज़ 1 और ग्रीन लाइन मनसूबे के हवाले से भी खुशखबरी सुना दी। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की वफाकी तरक्याती बजट 2020-21 के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग। बताया, आइंदा माली साल 530 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं। कराची सर्कुलर रेलवे फेज 1 के लिए रकम मुख्तस कर दी गई। ग्रीन लाइन का काम मुकम्मल हो गया। 11 अरब रुपए बसों और सॉफ्टवेयर समेत दीगर कामों के लिए मुख्तस किए गए हैं। असद उमर ने बताया कि हायर एजुकेशन कमीशन का तरक्याती बजट 35 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। हेल्थ केयर सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए 14 अरब, जबकि कोरोना से निपटने के लिए 70 अरब रुपए की स्कीम बनाई गई है। वफाकी वजीर के मुताबिक CPEC के लिए नए माली साल में 77 अरब रुपए मुख्तस किए गए। CPEC के तहत 2000 मेगावाट बिजली के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। अगले माली साल में ML1 का तारीखी मंसूबा शुरू किया जाएगा। रवां साल 3 अहम हाइडल मंसूबों द्यामिर बाशा डैम, मोहम्मद डैम और दासू डैम पर काम शुरू हो जाएगा। असद उमर का कहना था, स्टील मिल पर उनका मौकफ आज भी वही है जो पहले था। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। अदालती हुक्म के बावजूद चीनी 70 रुपए फी किलो दस्तयाब ना हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी पर हुक्म इम्तना खत्म करने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस अथर मिनुल्ला ने कहा कि हुक्म इम्तना चीनी की कीमत कम करने से मशरूत था। जब मशरूत हुक्म इम्तना पर अमल ही नहीं हुआ तो फिर हुक्म इम्तना कैसा। सुहेल रशीद की रिपोर्ट।
गन्ने के काश्तकारों की शुगर इंक्वायरी मामले में फरीक बनने की दरख्वास्त पर समाअत। चीनी सस्ती करने के अहकामात पर अमल दरामद न होने पर चीफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह भरम सवाल पूछा, चीनी 70 रुपए फरोख्त करने का क्या बना। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर ने कहा कि खतो किताबत जारी है, लेकिन मार्केट में चीनी 70 रुपए किलो दस्तयाब नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फिर तो बात खत्म हो गई। हुक्म इम्तना तो चीनी की कीमत कम करने से मशरूत था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि मरकजी केस आइंदा जुमे को मुकर्रर किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मशरूत हुक्म इम्तना पर अमल नहीं हुआ तो केस जुमे के लिए मुकर्रर कर देते हैं। तारिक खोकर ने सवाल किया, तो फिर हुक्म इम्तना खत्म हो गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब मशरूत हुकूमत इम्तना पर अमल ही नहीं हुआ तो फिर हुक्म इम्तना कैसा। अदालत ऐसे कीमतों का तयन नहीं कर सकती, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है। अदालत की शुगर मिल केस 19 जून को मुकर्रर करने की हिदायत। काश्तकारों की फरीक बनने की दरख्वास्त भी मंजूर। वफाक ने भी काश्तकारों की जानिब से केस में फरीक बनने की हिमायत कर दी। जुल्हज का चांद 21 जुलाई को कराची में देखा जा सकेगा। 31 जुलाई बरोज जुम्मा ईद उल अजहा होगी। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने कैलेंडर से चांद का ऐलान कर दिया। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने फिर चांद की खबर दे दी। ऐलान कर दिया कि ईद उल अजहा का चांद 21 जुलाई को कराची में देखा जा सकेगा और ईद बरोज जुम्मा 31 जुलाई को होगी। ताहम उनका कहना है कि ये तारीखें नई नहीं हैं, कैलेंडर में पहले से मौजूद हैं। ये जो ईद है, ये पिछले साल हमने जो कैलेंडर दिया था उसमें सारी डेट्स मौजूद हैं। ये तो 1 साल पहले अनाउंस थे। समय के मॉर्निंग शो नया दिन में फवाद चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम सारे उलूम का अहाता करता है, हमें हर इल्म से इस्तिफादा करना चाहिए। इस्लाम का सुनहरी दौर वो था जब हमारे उलमा जो थे वो सोसाइटी को लीड कर रहे थे साइंस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ। तमाम जो उलूम है उनका माखज़ कुरान है। ईद उल फितर के मौके पर भी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने चांद का ऐलान पहले कर दिया था, जिस पर रोयत हिलाल कमेटी का सख्त रद्द अमल सामने आया था। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि फवाद चौधरी को उनकी विदारत तक महदूद रखा जाए। कोरोना की वजह से अब मवेशी मंडियां भी लगेंगी या नहीं, महकमा दाखिला का खत। मंडियों के इजाज़तनामे मनसूख करने का हुक्म। फैसले से व्यापारी भी परेशान हो गए। सईद गनी तो कहते हैं कि ईद के लिए खुसूसी मवेशी मंडियों से मुताल्लिक फैसला नहीं हुआ। पूरी मंडी की सैर करेंगे, कुर्बानी के लिए मवेशी छांट कर निकालें। क्या इस ईद पर भी ऐसा होगा या नहीं? महकमा बल्दियात सिंध ने तो महकमा दाखिला का खत लेकर फौरी मवेशी मंडी के इजाजतनामे मंसूख करने का हुक्म दे दिया। फैसले से सोराब घोड़ मवेशी मंडी इंतजामिया को भी धचका लगा। व्यापारी भी परेशान हो गए। काफी बेरोजगारी है, तो इस वजह से परेशान हो गए हम। तो ये मंडी लगनी चाहिए। मैं मुल्तान जिला मुजफ्फरगढ़ से आया हूँ। उम्मीद किया कि यहाँ जो है ना जानवर आएंगे, माल मंडी लगेगी और मेरा जो है ना छोटा मोटा सिलसिला चलेगा। समा से गुफ्तगू में सूबाई वजीर सईद गनी ने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। कहा ईद के लिए खुसूसी मवेशी मंडियों से मुतालिक फैसला नहीं हुआ, लेकिन सारा साल लगने वाली मंडियों पर एहतियात न किए जाने पर पाबंदी आयद की गई है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जो मवेशी मंडियां हैं वो लगती रहती हैं और वो रेगुलर लगती हैं, पूरे साल लगती हैं, तो उनको बंद किया गया है। लेकिन ईद के दिनों में जो लगनी है मंडियां, उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वो फिलहाल तो वो फैसला अपने को मौजूद है कि वो लगेगी। ईद पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए कायम की जाने वाली मंडियों के लिए महकमा दाखिला सिंध SOPs तैयार करके वजीर आला सिंध को भेजेगा, जिसके बाद ही फैसला होगा कि कराची में मवेशी कैसे खरीद सकेंगे। आलमी मार्केट में पाम ऑयल सस्ता हो चुका है। घी और तेल की फी किलो कीमत में 50 रुपए कमी की जाए। वजारत सनत और पैदावार ने मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान को घी फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। अशरफ खान की रिपोर्ट। चीनी, गंदम और पेट्रोल के बाद घी और तेल माफिया का इंकशाफ। घी और तेल फैक्ट्री मालिकान की जानिब से आवाम को अरबों रुपए का चूना लगाया गया। वजारत सनत और पैदावार ने मुसाबकती कमीशन पाकिस्तान को खत लिख डाला। घी और तेल सस्ता न करने पर फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। वजारत पैदावार की दस्तावेज के मुताबिक FBI ने कोरोना के बाद पाम ऑयल इम्पोर्ट पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी 30 जून तक खत्म कर दी है, लेकिन इसका फायदा भी आवाम को नहीं दिया गया। जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हुई हैं उसके हिसाब से लोकल जो हमारे ऑयल की जो कंपनीज हैं, ऑयल मिल मालिकान है, वो तकरीबन 50 से 60 रुपए तक की इसके अंदर कमी ला सकते हैं। अगर हुकूमत इसके ऊपर एक्शन लेती है तो इसकी कीमतों को भी आम आदमी की पहुंच के
के अंदर किया जा सकता है। वजारत पैदावार के तखमीने के मुताबिक 1 किलो घी और तेल पर 50 रुपए तक कमी होनी चाहिए थी। फैक्ट्री मालिकान ने वजारत पैदावार से 50 रुपए कम करने पर आमदगी भी जाहिर की थी। मुताबिक कमीशन के मुमकिन एक्शन के बाद तेल और घी की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी मुतवक्को है। अशरफ खान, समा, कराची।